फॉर मी देर वॉज अ वेरी लाउड वॉइस इन साइड मी, वो बार बार मेरे को कह रही थी कि ये करना है, दिस इज नॉट इट, क्या मेरे बस का है। I was a bodybuilder and I have no hesitation in saying bodybuilding was harder. So I think something happens when everybody else goes to sleep. You left a very powerful job in UPSC to chase your dream. What would be that one fire inside you that even UPSC could not fulfill? With an MA in clinical psychology and mentorship reaching 3 lakh plus students, and today we have with us Ravi Kapoor. He's a former IRS officer, a bodybuilder as we can see, and a UPSC topper. He brings a unique blend of discipline and insight to his journey. Great. So I would like to first begin with just understanding your journey. You have, I think, built your life over a lot of dreams and milestones in your journey, starting from bodybuilding, as I mentioned, to UPSC, and now mentoring students. So if you were to take 1 minute and just talk to us about your journey, how would that be? My journey is full of mistakes. I am a complete idiot. I have made more mistakes than people count, which is the exact reason why we are here today. ये सारी की सारी कहानी यही है कि I have taken a lot of risks मैंने बहुत लिए हैं, और मैं थोड़ा सा प्रिविलेज था, थोड़ा सा लकी था कि वो रिस्क ले लेके मेरी सक्सेस रेशियो थोड़ी सी ठीक निकल आई। 10 में से 2 काम हो गए, और इसलिए हम आज यहाँ हैं। इन 1 minute, that is the long and short of it. Right. So you left a very powerful job in UPSC to chase your dream and your other projects in your life. So what would be that one fire inside you that even UPSC could not fulfill? I would say expression. इम्पैक्ट मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज इन द यूपीएससी, इन द गवर्नमेंट सर्विस इम्पैक्ट आपका होता है, बट बहुत कंस्ट्रेंट में होता है। यूनिक एक्सप्रेशन नहीं मिलती है सरकार में। सरकार में आपको वो करना होता है जो आपको करने के लिए कहा गया है। देयर इज़ अ मैंडेट, देयर इज़ अ लॉ, यू हैव टू फॉलो इट, और आपको उस हिसाब से वो करना है, वो तो ठीक है। और उसके बदले में यू गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, यू गेट अ पोस्ट, यू गेट अ डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज़ फाइन। बट आपकी खुद की एक्सप्रेशन क्या है? फॉर मी देर वॉज अ वेरी लाउड वॉइस इन साइड मी, वो बार बार मेरे को कह रही थी कि ये करना है वाली एक फीलिंग मेरे अंदर बहुत थी, स्टार्टिंग से थी। अब इफ दिस इज नॉट इट, देन व्हाट इज इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रियलाइज व्हाट इट इज हैज़ टू बी समथिंग, नंबर 1 मज़ा आना चाहिए, नंबर 2 लोगों की हेल्प होनी चाहिए डायरेक्टली। IRS में हम लोगों की हेल्प तो करते हैं, बट इट इज़ वेरी इनडायरेक्ट। हम लोग टैक्स फैसिलिटेशन करते हैं, टैक्स आता है, सरकार उसको यूज़ करती है, मेक्स थिंग्स बेटर फॉर पीपल, एंड वी डोंट नो वेयर द टैक्स गोज। हमारा काम कलेक्शन तक का हो जाता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं करता है, इट इज़ जस्ट यूर वर्क कॉग इन द मशीन ऑफ द होल सिस्टम। डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए यू हैव टू पुट योर फेस ऑन समथिंग। Absolutely. तो बेइज्जती भी आपकी और इज्जत भी आपकी, उस टाइप की ओनरशिप आनी होती। अब थोड़ा पीछे होते, सिस्टम आपको बचा के खड़ा बैठा होता है। मुझे चाहिए था कि मैं एक बारी बाहर जाऊँ, एंड आई वांटेड टू सी कि क्या मेरे बस का है। विदाउट द IRS am I somebody? Yeah. And so that was one of the biggest reasons I did it. And this whole journey of mentorship, of directly affecting people and teaching them what I had learned, is I was very clear कि यही है calling। बात कहाँ लेकर जाएगा I was not so sure, but I realized कि इसी डायरेक्शन में जाना है, तो फिर I did it and then I quit. Great. So, I mean, leading a question out of that, you have been a student and now you're mentoring about 3 lakh plus students till now. So, can you just help us understand the kind of dedication and rigor an exam like UPSC, not specifically focusing on UPSC alone, but what is that one thing which an average student should learn from this journey of yours? A, as a student, and now B, as a mentor, what you have understood about 3 lakh plus students? बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं बार बार। Before I did UPSC, I was a bodybuilder, and I have no hesitation in saying bodybuilding was harder. ज़्यादा मुश्किल था, फिजिकली पेन उसमें इन्वॉल्व था, लिटरली खाना नहीं मिलता था खाने को, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट। खाना तो मिलता है, बट यू कांट टेस्ट, भूल जाओ। टेस्ट वेस्ट का कोई चक्कर नहीं उसके अंदर। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि देयर वाज अ पेन थ्रेशोल्ड। हर इंसान का पेन थ्रेशोल्ड होता है ना, कि मैं कितनी पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ, राइट? पेन थ्रेशोल्ड आपका बढ़ जाता है थोड़ा, because the pain threshold is increased, you are now able to tolerate the same thing longer. You will sit at that table and read for 15 minutes longer than the other person. This 15 minutes is compounding. Nothing else is going on. There is no magic. There is no magic sauce. Your ability to delay gratification has increased because you were doing something hard initially. आप उसको लेकर ट्रांसपोज करते हो, चाहे मेंटरशिप में, चाहे अपनी यूपीएससी की तैयारी में, चाहे बाकी लोगों को यूपीएससी तैयार कराने में, चाहे जो भी आप कर रहे हो। वही सेम प्रिंसिपल जो एक बार समझ में आया था, वो बार बार यूज हो रहा है। So, continuing from the journey of bodybuilding to now mentorship, what is your lifestyle? आपका lifestyle कैसा है अब?
So diet पे of course we can clearly see, workout भी I'm sure अभी भी चल रहा है. But if you were to talk about your average 24 hours, how do you spend them? Okay, so it's very weird and I don't want to be a role model on that. But I'll tell you very honestly how it is. I cannot think during the day, I think in the night. Something happens in the night for me and for many other people. It started when I was doing UPSC. रात को 1 बजे के बाद कुछ तो होता है दिमाग में. I don't know if it has something to do with gamma waves or beta waves, but I am able to just focus. There is nobody but me and the content or what I'm trying to do. And also I think something happens when everybody else goes to sleep. जब दुनिया सो जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई फ़ोन नहीं बजेगा. Everybody is asleep. I am now separated from the world. The world is doing its thing and I am in an island of my own in space and time. छोटा सा मेरा एक आइलैंड है जहाँ मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ और उस अकेलेपन में आप अजीब थॉट्स एंटरटेन कर सकते हो. मैंने ये यूपीएससी में स्टार्ट किया था बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि नहीं हो रहा है मेरे से दिन में विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. This started, it is continuing to this day. So my routine is I usually literally think in the night. Reading, thinking, research is going on in the night, every night almost. This is going on until at least 1 or 2 a.m. typically. I make sure I get 7 to 8 hours of sleep. I wake up and I make phone calls. Why do I make phone calls? Why I make phone calls? Because that is the best conducive time for communication. Extroversion. Extroversion means you have to interact with people. लोगों को आपका एक्सेस चाहिए और आपको लोगों के साथ एक्सेस चाहिए. उस एक्सेस के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है 12 से 1 बजे, 12 से 2 बजे, लंच से पहले. और इतनी सुबह भी नहीं कि लोग सो रहे हैं. Yeah. I do that. I then go to the gym, smack in the middle of the day. I do that because it's empty. How long do you work out? An hour or so. Okay. Now my body is now trained enough and I know muscle memory is there. I know what to hit, when to hit, and I just hit it intuitively. I come out. I talk to nobody in the gym. I have been going to the same gym since the past 3 years. मैंने आज तक किसी से बात नहीं करी है क्योंकि मैं बिल्कुल वहाँ पर एक ही काम के लिए जाता हूँ और वो काम करके आई एम आउट ऑफ दैट. आई देन कम बैक एंड आई वर्क अगेन and spend some time with the family in the evening and then restart this 10 p.m. to 2 a.m. I'm thinking. Midnight. Thinking, researching, and then it repeats. Amazing, amazing. I think bunch of students here जो अपना routine अभी build करना शुरू करेंगे because it's their first year in college now. So I think one connecting question for the students as well. I think आपने 3 लाख से ज़्यादा students को mentor किया है. आपके पास काफ़ी messages भी आते हैं. एक ऐसा कुछ टॉक्सिक हैबिट या एक ऐसी कोई बैड हैबिट जो आपकी स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई हुई है जिससे वो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो भले वो यूपीएससी एग्जाम हो या भले वो किसी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही हो, बट व्हाट इज दैट वन टॉक्सिक हैबिट फॉर स्टूडेंट्स विच स्टॉप्स देम फ्रॉम अचीविंग? FOMO. हाँ, falling into FOMO rather is that one toxic habit. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हो अपने आसपास के डेटा से, सबसे पहले तो इट इज़ ग्रेट कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास हो क्या रहा है. रोल मॉडल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है. ओवर एक्सपोजर नहीं चाहिए मुझे. आफ्टर आई गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देन आई नीड आइसोलेशन. एक्सपोजर देन आइसोलेशन. देर सीम्स टू बी नो आइसोलेशन इज व्हाट आई फील. Constantly, if you are bombarded by what this topper is saying, by what that person is saying, by what that startup founder is doing, when will you exactly do the actual work? The actual work is always done in isolation. हमेशा स्टूडेंट्स जंप करते हैं, काफ़ी जंप करते हैं और उनको लगता है दे आर ऑलवेज नेवर श्योर ऑफ देयर ओन स्ट्रैटेजी बिकॉज दे नेवर स्पेंड इनफ टाइम ऑन देयर स्ट्रैटेजी टू रियलाइज. दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड. बाहर से फीडबैक आ जाएगा, द इन्फॉर्मेशन माइट कम, बट दैट इन्फॉर्मेशन विल बी हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड. इट विल नॉट बी कस्टमाइज्ड, इट विल नॉट बी फॉर यू, इट विल बी समथिंग दैट हैज वर्क फॉर समबडी एल्स. राइट. दिस 10 p.m. to 2 a.m. thing is working for me, might not work for you. You will have to listen to what your body is saying. Absolutely. Body signal देती है, दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग. सो सुनना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है वो लोग नहीं सुनते हैं, बहुत सारे लोग. Great. Sir, you have worked in the government. There are plenty of students plus outside this campus as well जिनको government के साथ associate होना है. So today as well, how can engineers get associated without cracking any of these exams but yet work with the government? So engineers के लिए या फिर startups के लिए, so how do startups and government work together? I think a lot of startups, a lot of government initiatives have been driven by a lot of startups. Yes. So what can you shed some light on that? Yes, because see, the government job is getting obsolete. क्या इसमें कोई शक है? Tech will take over clerical things. क्या इसमें कोई शक है? Not at all. अगर कि फाइल पे नोटिंग करनी है, क्लर्क चाहिए होता था, क्या वो अभी भी चाहिए होगा? नहीं. अभी भी रिडंडेंट हो चुका है. वो तो गवर्नमेंट ने जिद बना रखी है कि हम
इसको रोल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में उसकी एक बहुत बड़ी वो वैल्यू है। फेज आउट होगा वो, AI विल टेक ओवर, वाई विल इट नॉट? गवर्नमेंट पे भी तो अपने आप एक इंटरनल प्रेशर है ना कि आप ऑटोमेट करो, कॉस्ट कटिंग करो, एफिशिएंसी रखो, जो बाहर हो रहा है प्राइवेट कंपनीज में उसके आसपास रहो ना, यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। आपके पास एक ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी 150 लोगों की जो सिर्फ फाइल पे 2-2 लाइनें लिख के अपना सैलरी ले रही है, can't be justified if AI can do the same. So one, all clerical things, all clerical processes in the government will be automated. There will be a replacement of people who were just doing this routine work with people who can build agents who can do this routine work. Yeah. It is inevitable, no one can stop it. It will happen. It has probably already started. आपको एक concrete example देता हूँ। मैं कस्टम्स में था, आपको पता होगा कस्टम्स एक टैक्स है जो लगता है जब हमारे देश के बॉर्डर के पार कोई भी चीज़ आती है। आप अमेरिका से मंगवाओ, अभी जो टेरिस वाला इशू चल रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट कि भी कितना कस्टम्स लगेगा वहाँ। वो कहते हैं कि आप हमारे देश में भेजोगे नहीं जब तक आप 25% टैक्स नहीं देते ऊपर से, तो ये कस्टम्स की बात है। अब इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया में बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई दिल्ली में है। गुड्स आर लैंडिंग थ्रू एयर, गुड्स आर कमिंग थ्रू सी। कितने कंटेनर आते होंगे इंडिया में डेली? अनगिनत, अनगिनत यार, लाखों में आते हैं बिल्कुल, अनगिनत। और वो ऐसे आपको पार करने होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट दे पास बिकॉज दे मे कंटेन पेरिशेबल गुड्स, दे मे कंटेन समथिंग विच कैन नॉट बी हेल्ड। किसी बिजनेस ने मंगवाया तो वो चाहेगा नहीं जल्दी हो। ग्लोबली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टम्स के प्रोसेसेस फास्ट हों। इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम सुनते हैं, ज़्यादातर मार इसीलिए खाते हैं क्योंकि कस्टम्स के प्रोसेसेस कम्बरसम हो जाते हैं। अच्छा, अब आप कस्टम के प्रोसेसेस स्मूथ कैसे करोगे? मैं आपको ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 years ago, customs had instituted something called as RMS, AI based, ओके, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। पूरे दुनिया में एक रिवाज चला। रिवाज के मुताबिक हम कस्टम्स वाले आपका कंटेनर या आपको चेक नहीं करेंगे, पर हम आपको चेक करने की एबिलिटी रखेंगे। आप जब एयरपोर्ट से उतरते हो, इंटरनेशनल कस्टम्स, यू हैव टू क्लियर कस्टम्स। वाइट यूनिफॉर्म में लोग खड़े रहते हैं, एक ग्रीन चैनल होता है, एक रेड चैनल होता है। आपने शायद रेड चैनल कभी ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव पास थ्रू द ग्रीन चैनल। द आइडिया इज आपके पास अगर कुछ भी नहीं है डिक्लेयर करने के लिए तो आप निकल जाओ। यस। और अगर आपके पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए तो आप रेड चैनल। तो कस्टम्स ऑफिसर देयर हैज द एबिलिटी टू स्टॉप एंड आस्क क्वेश्चंस इफ ही फील्स सो। नाउ हाउ डू आई डू द सेम थिंग विद द मिलियंस ऑफ दोस कंटेनर्स कमिंग इन? आई यूज AI, आई यूज RMS। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टेल्स मी कि अगर वो कंटेनर सपोजिंग एक अजीब सी रैंडम कंट्री से आ रहा है जिस पे मेरे को पूरा भरोसा नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि वो जो आइटम आ रहा है वो वहाँ से आना नहीं चाहिए, इट विल फ्लैग इट। ओके, दैट इज व्हाट द कस्टम ऑफिसर विल गो एंड मैनुअली चेक। यू नो, अ कंटेनर इज ह्यूज। इन दिस होल रूम यू विल नॉट बी एबल टू फिट मोर देन 3 or 4 कंटेनर, 4-5 कंटेनर्स, यस, उससे ज़्यादा नहीं। तो और उसके अंदर सामान यस, कैसे चेक होगा? मैनुअली पॉसिबल है ही नहीं। यही हो सकता है ना कि हम अपने सिस्टम्स इतने इंटेलिजेंट कर लें कि डेटा के बेसिस पे हम स्पॉट कर पाएंगे ये चेक करने लायक है, इसको चेक करो, इतना % चेक करो। ये होता है कस्टम्स में। हु डज दिस? इंजीनियर्स डू इट। हु बिल्ड द RMS? कस्टम्स डिड नॉट बिल्ड इट, HCL बिल्ड इट ओके, फॉर कस्टम्स। इंडिया का सारा टैक्स का डेटा, EDI is a system called EDI. Now there is a system called GSTN, GST network. You say, who does it? It's not government people. Government people to just go and manage, come and go. It is being done by tech companies. The government will be run by tech companies, may still be managed by government officials, but the actual tech of the functioning of the whole country will be inevitably tech based. अंडरस्टूड। सो अगेन वन कनेक्टिंग क्वेश्चन सर इससे, आपको क्या लगता है अगले 2 सालों के लिए स्टूडेंट्स के पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी जिसमें स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉब्ली 2 से 3 साल में? कुड बी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, एट्सेट्रा। I would say lean towards AI and build applications that people obviously need. There is obvious need of facial recognition type things in traffic, right? There is obvious need. What we have seen now, Operation Sindoor, we have now it is obvious that you need AI to create good guiding systems, to create early detection systems. ये obvious है, इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। उस टाइप की चीज़ें बनानी चाहिए और उस टाइप की चीज़ों पे सिर्फ दिमाग लगाना चाहिए। वी शुड थिंक about what can I do to solve a problem that is affecting everybody? What can you do to create a solution that can solve to some extent the problem of traffic?
or to some extent the problem of uninhabited vacant spaces in society where people can be adjusted. What can I do to help farmers detect बारिश होगी या नहीं होगी? What can I do to make sure that he has the seeds he already needs? What can I do so that the government can facilitate bank transfer? Right. Even if you don't go to that level, remain at a level. For them, I think thinking is the right thing about it. आपके सामने कोई piece of news आती है, आप अखबार देखते हो, आपको समझ में आता है कि अच्छा इस टाइप का कुछ हो रहा है. The question you should be automatically asking, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो ये नहीं कर रहे हैं, इनको इसमें हेल्प मिलेगी. There is a solution, and that sort of thinking is the only thing they need to develop. इनके पास खुद चल के आएंगी opportunities. सर एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू प्रेजेंटेशन. आई थिंक एक क्यूरियोसिटी है जी. बॉडी बिल्डिंग वर्सेस यूपीएससी, ज़्यादा आपकी डेडिकेशन, टाइम एंड एफर्ट किस में गया था? Bodybuilding was much harder, I'm telling you. Oh, it is not as rewarded by society, Yes. but it is harder. Physical pain involved है, UPSC में कोई physical pain involved नहीं है. मुझे तो बहुत आसान लगा UPSC उसके मुकाबले, क्योंकि क्या करना है? What exactly do you have to do? पढ़ना ही तो है ना. You're not breaking your body, you're not brutalizing your joints. You are not, consuming food day and night that you do not want to consume. It's not that hard. Right. You just sit and you learn how to focus. Once you learn how to focus, before you know it, it can be done. But yes, there is a crossover. So if your question, the answer to it, brief answer is definitely anything that involves physical labor is going to be harder. UPSC इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, और अगर कोई बिल्कुल ठान ही ले तो वो कर लेगा. इंसिडेंटली दोनों कामों में उतने के ही टाइम चाहिए. 1.5 साल का आपको टाइम चाहिए टू कम्प्लीटली चेंज द बॉडी टू अ पॉइंट कि आप स्टेज पे जाके फिजिक का कंपटीशन जीत पाओ या compete कर पाओ. उससे कम में नहीं होती. बॉडी डज नॉट चेंज दैट फास्ट. इतना ही टाइम हमको चाहिए अपने माइंड को और तराशने में और उसको और बेटर करने में, ताकि UPSC जैसे एग्ज़ाम में जाके हम कंपेटिटिव हो जाएं. तो अगर आपके पास वो टाइम देने की वो पावर है, यू कैन डिले ग्रेटिफिकेशन एंड यू आर एबल टू सस्टेन अटेंशन एंड यू रियली वांट इट. एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, बोथ थिंग्स वर वांटेड, डिजायर्ड वेरी डीपली, Dreams. वेरी स्ट्रांगली. ड्रीम्स नहीं मैं बोलूँगा, नेसेसिटी. ओके. मतलब यू नीडेड लाइक यू नीड वाटर. उस लेवल की डेस्परेशन चाहिए थी, तब जाके ये काम होते हैं. बट अगर हो वो डेस्परेशन, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई काम दुनिया में जो नहीं हो सकता.